Hi, welcome to a new episode of Sportsy. Let's Aim Sports. Today we have a special guest with us, Dr. Sania Siddiqui, who is a certified health and wellness coach with the experience and expertise in the area of clinical practice, preventive healthcare, and medical content writing. Dr. Siddiqui is passionate about spreading awareness around menstrual hygiene and health amid young girls and women. She conducts sessions and workshops in organizations, schools, colleges to impart the much needed knowledge about menstrual health and issues related to it. She has reached to more than 25,000 women and girls through her educational and awareness gathering, conducted over 200 online sessions and on-ground sessions. She has trained over 350 volunteers and distributed over 50,000 sanitary pads so far. For her exemplary work in the field, she has conferred with Beti Bachao Beti Padhao Award in 2018. Dr. Sania started Hamjoli Foundation in Pune, primarily working towards creating awareness around menstrual health and hygiene. With a tagline which screams aloud, period, Sharm Nahi Kshamata Hai. Hamjoli is all about spreading precise information and education, eradicating period poverty, and breaking taboo and myths associated with menstruation. Dr. Sania strongly believes that menstruation is not only a woman issue, rather it's a human issue. So both gender need to be sensitized towards this topic. Hamjoli Foundation have a specially designed model for men and the schoolboys as well. Please welcome founder of Hamjoli Foundation, a lady who is relentlessly working in the field of spreading awareness about menstrual health and hygiene and talking to us about period. It's a comma, not a full stop. Dr. Sania Siddiqui. Hi, Dr. Sania. It's great to have you on the platform Sportsy. Let's Aim Sports. And believe me, it is such an amazing topic that we're going to talk about. And I'm so privileged to host you here. For our viewers and listeners, we have with us Dr. Sania Siddiqui, founder of Hamjoli Foundation. And there's amazing accolades to her. But I think the topic that we're going to talk about here, I think that is something as we call taboo or something that doesn't get discussed. But it's very important. At what she says, it is not it's not a woman issue; it's a human issue, and that has to be addressed. So, Dr. Sania, I want to welcome you on this platform, talking about periods, which is a comma and not a full stop. So, thank you for coming here. Thank you, Siddharth. The pleasure is absolutely mine. As you already mentioned, the topic in itself is a taboo. कोई बात नहीं करना चाहता है, घर में आपस में माँ बेटी इसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकते हैं, तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके इसके बारे में बात करना, इंफॉर्मेशन देना एंड स्पेसिफिकली एक ऐसे सेगमेंट को जो स्पोर्ट्स में है उनके साथ बात करने के लिए प्रिविलेज इज ऑल माइन. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Yeah, and believe me, get to talk to so many athletes, coaches, and every time we talk about it, there's nothing called one size fits all formula. Every female athlete has spoken about it. There's no one size fits all formula. How coaches needs to be aware of it, how athlete needs to be aware of it, and you can't shy away from saying that it's a girl's issue. It is what it is. It's not an issue. It's a thing to be discussed. So, Dr. Sania, yes, you are a practicing doctor, you are a certified health and wellness coach, and working in clinical practice, preventive healthcare, and other areas. But what got you into founding Hamjoli Foundation, and what's the charter of that? Okay, so as you have already said, I come from a medical background. I've been working in clinics and preventive healthcare, medicine everywhere else. And I, of course, have been meeting a lot of women and their daughters. बहुत तरह की चीजों के लिए. So one fine day, if you ask me what set me thinking about starting or working for this cause, so I remember, so this lady, she came to me with her daughter, और उसने आके मुझसे बोला कि मैडम मैं ये चाहती हूँ कि आप इनको, मेरी बेटी को, she was hardly 10 or 11, periods के बारे में कुछ बता दीजिए. तो ओके, मैंने बोला, बट ऑफ कोर्स सबसे पहला मेरा क्वेश्चन उनके लिए था कि अच्छा ठीक है मैं बता दूंगी, लेकिन आपने बताया क्या उसको, या आप खुद बता दी, आपने क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने बोला कि देखिए मुझे ना आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इसको ठीक से बता पाऊंगी, और मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन है, या मे बी मुझे नहीं समझ आएगा, सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बता दीजिए. तो जब ये मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे उस टाइम एहसास हुआ दो चीजों का,
पहली बात कि देखिए, ये टॉपिक कैसा है कि एक माँ और एक बेटी भी आपस में, माँ नहीं बता पा रही है खुल के अपनी बेटी को पीरियड्स क्या होते हैं, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हें कैसे डील करना है। और ये मदर जो थी, ये एक वर्किंग मदर थी, एजुकेटेड थी। तो आप वहां पे सोचिए, जहाँ एक रूरल सेटअप है या छोटे शहर हैं या कोई बस्तियां हैं, ऐसी कोई जगह है जहाँ पे तो और भी ज्यादा ऐसा कॉन्वर्जेशन पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे कौन बताने वाला है उन लड़कियों को इसके बारे में। दूसरी चीज, ये मुझे एहसास हुआ कि शायद पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, एक एक्सटर्नल एजेंसी ढूंढती हैं ताकि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन बच्चों तक, ग्रोइंग अप के बारे में, पुबर्टी के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में, क्या चेंजेस होने वाले, एक प्रिसाइज एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन उन तक करेक्ट वे में पहुंचे। सो दोनों चीजों को जब मैंने कंबाइन किया, तो मुझे लगा कि ऑफ कोर्स मैं पहली इंसान नहीं थी इसके लिए काम करने वाली। बहुत सारे लोग, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए, मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। बट मुझे लगा कि हाँ, ये एक अच्छा तरीका है, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां हम एजुकेशन, अवेयरनेस सबको मिला के काम करें। तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड चीज चाहिए थी। तो मैंने फिर 2018 में आई फाउंडेड हमजोली फाउंडेशन, एंड वहां से फिर इसके बारे में काम करना शुरू किया। मैंने पहले भी बहुत ज्यादा ग्राउंड वर्क कर चुकी थी इसके ऊपर, लेकिन प्रोफेशनली अगर आप बोलेंगे तो मैंने 2018 से वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। उसके बाद ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे वॉलंटियर्स को अपने साथ में लिया, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि मैंने एक अकेले ने जाके इसको सब जगह करना था या कर सकती थी। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स धीरे धीरे दे केम टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर ओन इन रिस्पेक्टिव एरियाज। तो इस तरह से हमजोली एक सिनोनिम जैसा बन गया है कि पीरियड एजुकेशन और के बारे में अगर कुछ अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो हमजोली का नाम अक्सर सामने आ जाता है। Excellent. I think, and that also shows that you have touched over 25,000 women, and you have conducted over 200 online courses. और आपको बहुत बेटी रेफरेंस बचाओ हैं बेटी क्या? पढ़ाओ का अवार्ड भी मिल चुका है 2018 जी, about the work that you've been right. doing. It's a great work that you're doing. लेकिन अगर बात करनी होगी इस टॉपिक के बारे में, the way we started with a word called taboo. So that means when there's a taboo, there are facts and there are myths about everything that we talk about. So Yes. we have a lot of viewers and listeners who are athletes. This is the channel is about the athletes and the sports people. So obviously, and unko to और ज़्यादा questions आते रहते हैं, because we have seen so many girls dropping out from sports because they don't know what is happening, or boys are making fun of a few things about they are not aware of what are things are being taught. So आपके प्लेटफॉर्म पे तो बहुत सीखने के लिए मॉड्यूल्स है, लेकिन to break some of the myths and wrong facts about all the things, that we just want to have some question that we actually spoke to few athletes before coming up with the question, because even though I work in the sports industry, I come from doctor's family. For me, it was never a taboo while growing up. Right? Like my mom taught me about that like to wife, to my sister, my daughter, everybody. Like it's a thing that is in the openness that get discussed, and there's nothing to be ashamed of. So, but a person like me who comes and can't talk about it, but there are so many people who are not talking about it. As you said, a mother could not talk to her daughter. So Yeah. on those things, if you want to talk about common myths that are there around it, what those could be? आपको अगर बोलने होंगे those typical high level myths. Okay, so starting with the cliche, I would say, अचार को मत छूना, don't touch the pickle. आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स भी इसके ऊपर चले हैं। खाना, किसी भी तरह का खाना लड़कियों को किचन में एंटर करने की इजाजत नहीं होती है। दूध, दही, कुक्ड फूड को हाथ नहीं लगाना है। अच्छा, हाथ मतलब क्या, अभी हम कोई हाथ अंदर तो खाने के डालते नहीं है। स्टिल दे आर नॉट अलाउड टू इवन टच द यूटेंसिल, आई वुड से, नॉट इवन खाना। फिर किसी भी पेड़ को पानी नहीं देना है, क्योंकि वो मर जाएगा, क्योंकि आप पीरियड्स में हैं। अगर आपकी छाया पड़ गई, कोई अचार या कोई पापड़ जैसी चीजें बन रही हैं, एंड अगर आपकी उसके ऊपर मेंस्ट्रुएटिंग उसकी छाया पड़ गई, तो वो लाल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके, एक मतलब वियर्डेस्ट ऑफ द थिंग, क्योंकि हम जब ग्राउंड पे जाते हैं, ऐसे सेशंस करते हैं, तो इतनी सारे लोगों, लड़कियों से स्पेशली जब मुलाकात होती है, तो बहुत अजीब-अजीब कि पानी नहीं देना है, नानी दादी को पानी नहीं देना है। अच्छा भाई, बस नानी दादी को ही नहीं देना है, बाकी सबको दे सकते हैं? तो नहीं, नानी दादी को तो नहीं देना है। सर नहीं धोना है, नहाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं।
बहुत सारी चीजें तो मैं ये बोलूंगी कि रिलीजन से लोगों ने अटैच की हुई हैं। बहुत सारी चीजें कल्चरल है, और उनका जो प्रभाव है ना, जो बहुत ही बुरा इफेक्ट है, वो हाइजीन के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। अगर आपको बोला जाएगा आपको 5 दिन नहाना ही नहीं है, आपको सर नहीं धोना है फर्स्ट डे, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई रेलेवेंस, साइंटिफिक बैकिंग से कोई मतलब नहीं है। एक परसेप्शंस हैं जो चले आ रहे हैं, जो पहले टाइम पे बने थे, जिनके उस टाइम पे शायद लॉजिकल रीजनिंग कह सकते हो, साइंटिफिक तो नहीं, लॉजिकल रीजनिंग्स थे। बहुत सारे आप रिलेट कर सकते हैं ऐसी बातें कि आपको बोला जाता था नहाना नहीं है, खाने को हाथ नहीं लगाना, अचार को। तो आप ये समझ सकते हैं, जब एक लेडी को बोला जाता था तुम मे बी मेंस्ट्रुएटिंग, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स तो नहीं थे कि पीरियड पैड्स हैं, टैम्पॉन्स एंड एवरीथिंग, तो हर जगह स्टेनिंग हो जाती होगी। तो उसको बोला गया था कि तुम एक जगह पे साइड में बैठो, विच मेड सेंस। अब जब एक जगह साइड में बैठे हुए हो 5 दिन, नहाने को भी मना किया गया है, क्योंकि आप एक कॉमन एरिया में जाओगे नहाने के लिए, वहां पे आप एक ही मान लो पॉन्ड में जा रहे हो एंड यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, तो वो सारा पानी ये होगा, तो मना किया, नहाओ भी मत। ठीक है, समझ में आ गया। अभी आपने 4-5 दिन नहाया नहीं है, आपकी हाइजीन इतनी खराब हो रही है, अगर आप किसी भी खाने की चीज को, एडिबल चीज को करोगे, तो क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से खराब होने का पॉसिबिलिटी है। तो तब अचार खराब हो जाता होगा या खाना खराब हो जाता है। तो अगर आप लॉजिकली सोचे तो यस, इट डिड मेक सेंस उस टाइम पे। और अगर आप उसी चीजों को आज के पर्सपेक्टिव में रखें, तो एक भी चीज आपको लॉजिकल नहीं लगेगी। आप कहीं स्टेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। आप बाथरूम में नहाते हैं, शावर पैनल्स होते हैं, कोई इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर नहीं होता है, आपकी हाइजीन इतनी परफेक्ट है, एंड स्पेशली इन द कोरोना टाइम्स तो आप इतना क्लीन रखते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, तो क्रॉस कंटेमिनेशन का कोई सवाल नहीं है। आप खाने में, अचार में हाथ तो नहीं डालने जा रहे हो। तो लॉजिकली एक भी चीज अभी स्टैंड नहीं करती है, फिर भी वो मिथ्स चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा जो एक काम है, वो ब्रेकिंग मिथ्स के लिए इसीलिए है कि हम क्या बोलते हैं जब हम यंगर्स से साथ बात करते हैं, कि हमें ये नहीं करना है, हमें आपकी नानी दादी को ठीक नहीं करना है। वी आर नॉट देयर टू कन्विंस देम, बिकॉज वी नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डीप रूटेड, उनके जो एथिक, जो जो उनके परसेप्शंस है। तो फाइन, वहां नहीं जाना है, हमें आपको बताना है, सो दैट टुमारो व्हेन यू आर गोइंग टू हैव योर ओन हाउस, व्हेन यू आर गोइंग टू बी रनिंग दैट हाउस, you should not be following what you had followed or what you were told. आप नहीं करोगे तो आप अपनी बेटी को नहीं कराओगे, and that's how the chain is going to break. So जो हम चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आने वाली जनरेशन में कर रहे हैं। सो इस तरह से मिथ्स और टैबूज को तोड़ना बहुत मुश्किल है सिद्धार्थ। आप समझ सकते हैं कि जब उन लेडीज से हम बात करते थे, स्टिल स्टबर्न, नहीं आपको नहीं पता है, हमारे साथ तो कुछ बुरा हो जाएगा अगर हम करेंगे, तो दे डोंट वांट टू टेक दैट चांस। सो ये है। I think the culture under the name of culture and religion and everything. I think the people are brainwashed so much for ages together. I think it takes time, एंड as यू you said, the स्कैर्ड breaking कि the कुछ rules. खराब नहीं हो जाए, आप कर तो लिया, इन्होंने हमें बोला कर लिया, लेकिन यू नेवर नो व्हाट बैड कैन हैपन टू अस। Yes. सो So या yeah. So I think yes, and this will take a lot of relentless effort, and I think the people like you who are taking a step in that. So just coming to that point, which is towards the athletes. A lot of girls, obviously, if you look at the Olympics and everything, the girls have done better than the boys. Anywhere we do, we see girls are doing wonderfully. But when we clap for one Hima Das, there are 100 Hima Das who could not become Hima Das because of टॉपिक लाइक मेंस्ट्रुएशन, हाइजीन एंड हेल्थ. सो अगर उसके बारे में बात करनी होगी तो सम ऑफ द टिपिकल क्वेश्चंस, राइट? डज एक्सेसिव ट्रेनिंग अफेक्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल? Then there are ओके, topics like I'll just ask you 2-3 points so you can actually probably combine that. Then there is a श्योर, topic called is having tablets right is all right to delay periods, because टू डिले टूर्नामेंट पीरियड्स। शेड्यूल तो फिक्स होता है और उसके हिसाब से वहां पे पार्टिसिपेट तो करना है. बट कैन वी डू दिस? इज इट गुड फॉर अस और इज गुड इज नॉट गुड ओके, फॉर अस? इट इज समथिंग लाइक राइट, जो एंजाइटी होती है, परफॉर्मेंस का स्ट्रेस होता है, does that affect your menstruation and does that affect यस, your health in the long term? एब्सोल्युटली, uh, एब्सोल्युटली, so there are a few more questions, but I think let me ask you these 2-3 questions to get a set probably some answers from you. राइट। सो सिद्धार्थ, एज यू सेड कि सबसे पहले तो चीज है कि क्या एक्सेसिव ट्रेनिंग करने से मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई असर पड़ता है? बहुत सारे लोगों के पास ये होगा कि हम इतना ट्रेन कर रहे हैं, कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, एक्सेसिव वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इज इट गोइंग टू अफेक्ट आवर मेंस्ट्रुअल हेल्थ? तो मैं ये बोलूंगी कि यस,
in a way it does bring some changes on your hormonal levels. And up to, I think, almost if I go by the data, 60% of women athletes have reported this कि या कुछ ना कुछ चीजें होती हैं. क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले चीज है कि जो पीरियड्स लाइट हो जाते हैं, लाइटर, नॉट वेरी हैवी पीरियड्स, लाइट पीरियड हो सकता है आपको आ जाए. कभी कभी स्किप हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमिनोरिया. कभी कभी ऑल टुगेदर स्किप हो सकता है. एक अच्छी गुड न्यूज होती है कि जो क्रैम्पिंग होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग, वो जो एथलीट्स हैं उनको कम होती है. ऑफ कोर्स अगेन अ हार्मोनल कनेक्शन इज देयर. मिड पीरियड में स्पॉटिंग कभी हो सकती है. सो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, 4-5 चीजें, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फ्लक्चुएशन की वजह से होती हैं. सो यस, डेफिनेटली इफ यू आर एक्सरसाइजिंग विग्रसली, इफ यू आर एन एथलीट एंड कंटिन्यूअसली आप वीक में 4 दिन 5 दिन ट्रेन करते हो, तो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन टू यू. और किसी को कुछ हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है. सो यस, इट्स नॉट अ मिथ, इट डज हैपन. Okay. फिर आपने मेरे को पूछा, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, और इसका मैं इसलिए जवाब देना चाहूंगी क्योंकि ये सिर्फ स्पोर्ट्स वुमन से रिलेटेड नहीं है. ये मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज इससे रिलेटेड आते हैं कि गोवा जाना है तो क्या हम पीरियड को डिले कर सकते हैं, हमारा हॉलीडे प्लान है, अब हम क्या करें. ऐसे ही जैसे आपने बोला स्पोर्ट्स में उनके इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो डेट आ गया तो क्या करें. सो आई वुड से, और मे बी अदर गायनेकोलॉजिस्ट वुड आल्सो अग्री टू दिस, कि वंस इन अ वाइल if you have to take that tablet which is norethistron करके एक कंपाउंड होता है, अगर आप once in a while, once in a blue moon exactly जिसे कहते हैं, you can take it, but of course under medical guidance you can take that tablet, but you should not make it a regular practice कि हर 2 महीने के बाद में, हर 1 महीने के बाद में आपको कुछ तो ऐसा हो जा रहा है कि आपका टूर्नामेंट and you are taking it, right. तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टैबलेट ऐसी नहीं है कि अगर आपने सोचा मेरा ड्यू डेट आज है तो मैंने आज से वो पिल खा लिया और आई शुड एक्सपेक्ट कि चलो बस आज से मेरे पीरियड्स नहीं होने चाहिए. इट डजंट वर्क लाइक दिस बिकॉज इट्स एन हार्मोनल कॉम्बिनेशन. तो उसमें कम से कम 3 days प्रायर टू योर एक्सपेक्टेड डेट you have to start taking that pill, and उसका भी एक डोजेज है, like 3 tablets in a day, and you have to continue taking it till 20 to 22 days, राइट. तब जाके वो जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो बढ़े रहेंगे, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड होता है. तो वो, और जो प्रोजेस्टेरॉन जब कम होता है एक्चुअली, तभी जो लाइनिंग है यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक होती है और पीरियड्स ब्लीडिंग स्टार्ट होती है. तो इस मेडिसिन का काम ये है कि इट्स सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ओनली, और ये लेवल को बढ़ा के रखता है. और 22 डेज के बाद जब आप इसको छोड़ेंगे तब आपको विड्रॉल ब्लीडिंग आफ्टर 2 to 3 days हो जाएगी. सो the point to remember is कि you can take it one of the times, that to under medical guidance, और immediate नहीं लेना है कि अभी आज मुझे कल टूर्नामेंट है तो मैंने आज ले ली. It will not work. You have to take it पहले से. तीसरी चीज, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं नॉर्मल से. जैसे पहले तो अगर आप बार बार इसको लोगे तो आपके पीरियड साइकिल पूरा इरेगुलर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कितना ड्यूरेशन है. मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, और एक्ने वगैरह हो सकता है. सो जब भी ये सोचना है कि अगर ऐसा कोई टूर्नामेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको सोच के और एक मेडिकल गाइडेंस के अंदर आपको इसको लेना है. So basically, it's all about the period planning. You have to plan Yes. as per the if you have a tournament or if you have a set schedule, then consult with the doctor Consult with the doctor and plan it Right. accordingly. Don't take any hasty decision on your on own, and not very frequently also. Yeah. Yes. तीसरा एक और आपने पूछा जो Stress. वो भी बहुत relevant है, Performance anxiety and stress. Yeah. परफॉर्मेंस. सी, स्ट्रेस का बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन है हमारे हार्मोनल फ्लक्चुएशन से. जैसे ही हम अंडर स्ट्रेस होते हैं, हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाती है, तो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल. जैसे ही वो क्या कहते हैं हिट करता है, स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा एक्सेस में हो जाता है, तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स थे उनके अंदर इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, एंड अगेन इट कैन डिले योर पीरियड. पीरियड डिले किसको बोलते हैं? अप टू 5 to 6 days अगर आपका लेट हो गया है एक्सपेक्टेड डेट से, दैट इज अ डिलेड पीरियड. तो यस, स्ट्रेस कैन डू. और बहुत अच्छा एग्जांपल है पैंडेमिक का. बहुत आपने रिपोर्ट्स शायद ऐसे पढ़े होंगे कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक अ लॉट ऑफ वुमेन सफर्ड विद मतलब वेरियस चेंजेस इन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल. डिलेड हो गए, स्किप हो गए, ओनली बिकॉज क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में जो इतना सबने देखा है वो चल रहा था.
So stress is definitely a major factor in disrupting your menstrual cycle. Okay, and as a practicing doctor, and about this topic, you might be saying that calming down, do some meditation, do some yoga. I think those things might help in the whole process, right? Of course, you have to keep yourself calm, and Yeah. you have to So already work. there is one more topic, and it's, again, I have heard it while growing up as well, right? Not from my parents, but around that, like बहुत खेलोगे, excessive training करोगे, is going to affect your fertility, and that is one of the Yes, the thing it's that it could not a happen. myth. So Yes, okay, it's not so it can happen. Again, everything and anything is related with the hormones. So what happens कि when you are excessively training, अब कहीं ना कहीं आप कैलोरी काउंट भी करते हो, आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप कट डाउन करते हो कार्ब्स भी, प्रोटीन ज्यादा लेते हो, कार्ब्स को कट डाउन करते हो. So all that affects in resulting in low levels of estrogen. बॉडी क्या करती है कि अपने आप को सेव करती है अपनी एनर्जी को, जब आपके पास ऑलरेडी डेफिसिट है कैलोरी का, तो वो उसको सेव करती है दूसरे वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. और जो ओव्यूलेशन है, यानी जो एग मैच्योर होता है ओवरी से एंड रिलीज होता है एंड यूट्रस पे आता है एंड एवरीथिंग, एंड व्हिच इज आल्सो रिलेटेड विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल. लेकिन जो कंसेप्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ओव्यूलेशन होना, तो वो ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाता है क्योंकि लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन हो जाता है. So जब ovulation नहीं होगा तो of course pregnancy is not possible. okay, So but excessively train करोगे तो there is a possibility it may affect the fertility. okay, so we are talking about that excessive training, exercising, working out, and getting competitive, ready for the athlete. But at the same time, we have seen amazing examples like Sania Mirza in India, right? She delivered a baby and came back and again on the court. Like we are talking about Serena Williams at the different level, being a mother and coming back. Mary Com's story about coming back and all. So they were competitive athletes, and it's not like it's going to happen for sure. But I think what matters here, I think that we would like you to explain, is what matters is about how do you manage your day and knowing your body. How do you manage that over the period? I think if you can tell us that, because there are a lot of young girls who will be watching this, and athletes who are amateur athletes who are watching this. I think for them it will be good to know that don't get scared by this. You are still a competitive athlete. You are there to perform. But उसके लिए अगर वो करना है तो आप क्या साइड में कैरी करो, उससे आपको फायदा होगा. अगर वो बात करेंगे आप ज्यादा अच्छा रहेगा. राइट. सो जैसे आपने बोला कि एथलीट है तो ट्रेनिंग तो वो करेगा ही, चाहे वो रनर है, बॉक्सर है, कुछ भी है, तो जो उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग रहती है वो रहती है. साथ में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो क्या होता है कि आपको एक शायद टारगेट दिया जाता होगा कि वेट आपको एक जरूर रहता है कि आपको ब्रिंग डाउन करना है. तो जब आप जैसे ही बात करते हो वेट ब्रिंग डाउन करने के लिए, आप कैलोरी कट करना शुरू कर देते हैं. तो उसमें क्या होता है कि ये जो साइकिल है, अगर ये प्रॉपरली अच्छी तरह से मैनेज नहीं है, इट्स नॉट बीइंग टोल्ड बाय अ डाइटिशियन, और आप ऑन योर ओन यू स्टार्ट कटिंग योर कैलोरीज, तो मैंने जैसे बोला कि कैलोरी डिफिसिट हो जाता है. उससे बहुत तरह की आपको बॉडी के अंदर इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेनस वर्क. सो अगर आपको ऐसा करना है, लॉन्ग टर्म की तरफ आप देख रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको ट्रेनिंग के साथ साथ में अपनी डाइट के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. इट इज नॉट अबाउट ओनली लूजिंग वेट, ऑफ कोर्स एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट. इट इज अबाउट बिल्डिंग योर स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए प्रॉपर आपका डाइट प्लान होना चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब चाहिए. फैट को लोग बिल्कुल नेगेट कर देते हैं, ऐसा नहीं है, फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वन ऑफ द पिज्जा सम डेज विल वर्क, ऑफ कोर्स. सो वो सब चीजों को आपको ध्यान रखना है. और जो थोड़ी लाइफस्टाइल की चीजें हैं, अगर आप उनको ये कर सकें, फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल को कट कर सकें, अगर ज्यादा सॉल्ट या ज्यादा शुगर को कट कर सकें, अगर कैफीन, कॉफी किसी को बहुत ज्यादा है शौक, अगर वो वहां पे कट कर सकें, ऑफ कोर्स गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सब चीजें हैं व्हाट यू शुड बी ईटिंग, लाइक वाटर हो गया, गुड प्रोटीन डाइट एंड कार्ब्स, गुड आयरन रिच डाइट एंड एवरीथिंग एल्स. और कुछ चीजें जिनको आप बिल्कुल खत्म करें, सॉल्ट, शुगर, इस तरह की चीजें, कैफीन. सो ऑफ कोर्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप शुरू से बना के इन अ गाइडेड form लेके चलेंगे, so it will really help you, and it is not only about losing weight. Correct. No, I think it's an important topic, because
it shouldn't come out showing that okay, while we want to break the taboo and want to spread the awareness, it is not something that you want to be scared of. I think because the athlete is always fearless, they always are driven by the goal, and in that journey, I think if you manage it well, if you take a all around help with the right approach, I think it is very much doable. Because on the scientific level, we have learned is basically there's a positive impact of on a performance, a better performance during periods. A lot of athletes have come out and said that okay, there's a positive the performance, they have performed the best during the period. So there is a different side to it. So as a doctor, what do you have to say about that? राइट आपने जब अभी बोला कि सम में कम बैक एंड रिपोर्ट कि दे परफॉर्म वेरी वेल सो अगेन हाउ इट इज रिलेटेड टू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ यू नो द बेसिक्स तो देयर आर फ्यू phases so like luteal phase follicular phase ये सारे फेजेस जो फॉलिकुलर फेज होता है उस टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत हाई होते हैं और वो हमें पंप अप करते हैं हमारे एनर्जी के लिए वी आर इन द बेस्ट ऑफ द फेज उस टाइम पे जो हमारा फॉलिकुलर फेज होता है तो उस टाइम पे अगर आपका कोई ये पड़ता है टूर्नामेंट या तो you'll be doing very good on the contrary इसके बहुत सारे ऐसा भी देखा जाता है कि जब पीरियड्स के टाइम पे बहुत पुल डाउन भी हो जाते हैं उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं PMS होता है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज फॉर रियल लोग इसको चाहे ना क्या कहते हैं इतना कंसीडर करें बट PMS इज फॉर रियल इट हैपेंस टू नॉट टू ऑल वुमेन बट टू सम वुमेन उसके अलावा पीरियड्स के ड्यूरिंग फर्स्ट डे सेकंड डे एक्सेसिव क्रैम्पिंग हो सकती है किसी को ऑफ कोर्स जब आपको इतना यू आर इन पेन हाउ यू आर सपोज्ड टू रन दैट स्प्रिंट राइट तो इस तरह से क्रैम्पिंग हो सकती है ब्लोटिंग होती है वाटर रिटेंशन हो जाता है नॉजिया फील हो सकता है एनीवेज यू आर मेंटली और नॉट साउंड तो ऑफ कोर्स दैट ऑल इज गोइंग टू अफेक्ट योर परफॉर्मेंस तो पीरियड्स के जहाँ पे मैं पीरियड्स में परफॉर्म करने के एक दो मतलब प्रोज भी हैं वहाँ कुछ कॉन्स भी हैं Okay, and on the same as you said, right, the PMS, or you're talking about the stomach cramps and other things which are there. But what can these girls do if this happens to them during the tournament or just around that period? What can they do? Right. So one thing is कि आज टेक्नोलॉजी का सहारा लेके काफी मदद मिल सकती है मैं कैसे बोल रही हूँ ये कि सबके अपने फोन में एक पीरियड ट्रैकर एप्स आते हैं तो हम वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर हम कुछ महीने तक उसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वो असेस कर सकता है और प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो व्हेन इट इज अबाउट टू कम तो पहले तो हमें ये पता चल जाएगा कि फिर हमें अपने बॉडी का पता होता है कि क्योंकि जो ये डिस्मेनोरिया है जो क्रैम्पिंग इन पीरियड्स है सबको नहीं होती बट कुछ को होती है कुछ को प्राइमरी होती है एज एन विदाउट एनी रीजन जो एक फिजियोलॉजी है क्रैम्पिंग होती है कंट्रैक्शन की वजह से और दूसरा सेकेंडरी हो सकती है फाइब्रॉइड्स है एंडोमेट्रियोसिस है किसी और तरह की मेडिकल कंडीशन है तो उसकी वजह से भी हो सकती है तो अगर ये यंग एथलीट्स हैं एक नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं किसी को डिस्मेनोरिया होता है और उन्हें पता है कि मेरे को ऐसे परफॉर्म करना है या उस पे जाना है तो बहुत ही सेफ I would say not painkiller analgesics आते हैं जो they are meant for to relieve menstrual cramps and pain non-steroidal analgesics होते हैं ibuprofen type के analgesics होते हैं the trick is to consume them before you get into that कि period इतना excessive pain start हो गया when then you are going to take the medicine it is not going to work that much so if you already know कि I'm about to begin my period they can have it beforehand so that the effect lasts for a longer time तो वो सेफली किसी मेडिकल गाइडेंस के अंदर किसी तरह का ऐसा एनाल्जेसिक ले सकते हैं दूसरा एक और ऑप्शन होता है अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे सो दे कैन प्रिस्क्राइब दोस गर्ल्स लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल पिल्स वो क्या होता है वो भी एक तरह का कॉम्बिनेशन ही होता है ऑल्दो दे आर बर्थ कंट्रोल पिल्स बट द फंक्शन रिमेन्स द सेम कि वो सिंथेटिकली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बॉडी में डालते हैं और कम लेवल में डालते हैं तो जितने भी पीरियड के सिम्टम्स हैं वो थोड़े से डिमिनिश हो जाते हैं यानी लाइटर पीरियड्स हो सकते हैं क्रैम्पिंग नहीं होगी सो बट ऑल दैट हैज टू बी डन under proper medical guidance. Once you have to visit a gynecologist, she'll take proper history, she'll understand your situation and then she'll prescribe. Yeah, and for more, I think more and more information about this, I think people can visit your website, which is humjolifoundation.com. humjolifoundation.com, and I think in the description of this video we will share more information about that as well. And
I think this is something very important for people to talk about it. And you just touched upon a topic called technology. And starting में हमने बात की थी कि पहले they were nothing, right? It was spotting beating हो सकता है इसलिए एक side पे बैठो. But now with technology we have multiple products, like there are pads, there are tampons, there are cups. So Right. what do you I know it's a personal choice that happens, but for an athlete, if you want to suggest something, what typically works for what type and when, if you want to talk about that. Great question. Because पहले अगर मैं और 10 साल इंडिया के बारे में बात करेंगे, 10 साल 15 साल पीछे भी जाएंगे, तो हमें सिर्फ डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन के बारे में पता था, या कपड़ा जो हमारी नानी दादी यूज करती थी, और हमने सुना था कि पहले लोग कपड़ा यूज करते थे. अर्बन सेटअप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें बस वही पता था. But thankfully, with the advent of technology and so much information, and West has been using it पहले से ही, so there are so many other options available other than pads. And यहाँ हम सिर्फ स्पोर्ट्स वुमेन है या जो एथलीट्स है उनके रेस्पेक्ट में बात करूं, तो इफ यू आर वेयरिंग अ पैड, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो, द बेस्ट ऑफ द पैड, द थिनेस्ट ऑफ द पैड एंड एवरीथिंग, it because of friction, it is not going to be a very comfortable thing for them, क्योंकि friction की वजह से rashes हो सकते हैं. Anyways, it is not good because of the tight clothing and everything. It is not going to be a very comfortable thing. So what these girls can opt for, again, as you said, it's a personal choice. There are other options which are insertable. You have to insert it inside the vagina. Like sanitary pad is a thing that can be used on the undergarment, but like tampon and a menstrual cup, these are two devices which has to be inserted inside the vaginal canal. Right. Now, when you say that, everyone gets scared. How's that possible? How maybe a girl of 15 or 16 years old, how she's going to do that? Even older women. So talking of tampons, tampon is a very small pen, I would say a cigarette kind of a device. It's a very small thing. It is made of a similar material of which sanitary pads are made of, right? So the fiber is such that it has extremely excessive high absorbency power. So the moment it is inserted inside the vaginal canal, and there is string which remains outside, and the flow that drops on it, it swells up and it takes the shape of the entire vaginal canal, and not even a drop comes out and stains your clothing. So that is a one very good option for athletes. They can use that. They can do swimming using a tampon. They can run, they can wear whatever they want. The only thing is they need to use it for a while to get accustomed with how the insertion and everything. Another revolutionary thing I would say is a menstrual cup. Now, it's an extremely environmental friendly device also. It is made of silicone, medical grade silicone. And it is again a similar device which also has to be inserted in the vaginal canal. It's a very flexible thing. It's like a cup. You insert it high up and leave it there. All the menstrual blood coming from the uterus will get collected in that cup. And after 7 hours, 8 hours, you have to remove that cup, wash the cup off, and you have to again reuse it. So both these things they are going to be a boon for young athletes. Right. The only thing is कि you have to have little practice to start using it. It is not that कि आपने सोचा कल मेरा टूर्नामेंट है, आज मैं मार्केट में गई, खरीद के लाया, and I start using it. You might not be able to be very comfortable using that. Interesting, yes, and this is something which is, I think, probably the questions for many female athletes, or many parents or moms have these questions probably for going forward. And I think that there is and when you talk about the revolution, everything, right? When we've been having the sanitary pad advertisements on television for longest time, but when PV Sindhu came and did the Stay Free ad, I think that also changed a perspective and talking about it. I think that helped a lot. And a lot. Yeah, it helped a lot. There is one more question around the same topic. Is like, okay, there are the sanitary pads which are made out of gel, and which also has some medical science talking about the cervical cancer and all those things leading to that. At the same time, athlete is creating a lot of heat in their body when they're performing. So that heat and this gel, if you want to talk about on the medical science perspective, is there any combination of this that can be avoided or for the be safer?
See, more than the gel part, actually what happens, the sanitary pads or tampons, when they are manufactured, they undergo a lot of processing, right? A lot of bleaching. Why they appear so white, pristine white? Why? Because they undergo a lot of processing and the process of bleaching. So now this bleach is, of course, a chemical. And imagine, so the pad is like this and the vulva or the vagina is like this. So it is bound to absorb some of the chemical inside it. It is not a certain thing that yes, it will lead to a cervical cancer or something like that, but you never know. It is chemical, your body is absorbing it in the close contact of it. You never know what it will may turn up to. So yeah, there is a possibility of this kind of incidents, but then to do away with that, maybe then using there is a good option is there, which is known as reusable cloth pads. So nowadays in the market, there are a lot of reusable cloth pads. You don't have to throw it after using it. It's just like a normal pad, but it is made of cloth and multiple layers of cloth and very nicely stitched. So you have to use it, wash it, dry it in the sun, and again reuse it. So that can be a healthier and environmental friendly option. But of course, not while you are performing. So while you are performing, it's advisable to go for a cup or a tampon. I'm sure, I think everything happens under the, please have the medical supervision, talk to your gynecologist, or reach Yeah. out to somebody like Hamjoli, Mm. Dr. Sania to get more information. So Dr. Sania, it's like we spoke about few, I think, and if people need more information, they will for sure reach out to you. And now I want to talk about the part that you mentioned earlier. This is not a woman issue, it's a human issue. So what do you think the boys needs to learn from this, or what are the things that we need to teach the boys? Because the girls and boys are playing together till 11, 12, 13, and suddenly the separation starts happening. And Hmm. that is the period I think the boys also need to be taught about what is happening with girls and all those things. So how do you take care of these things whenever you are talking about it? Okay, Siddharth, so I'll tell you, we have a specific and separate module for boys. We go in the schools, we take sessions for boys, we take sessions for fathers. So, of course, men are an integral part of a woman's life in every possible way, starting with being a daughter, sister, wife, friend. In each and every aspect of the life, a boy is there next to a girl. So, how can she not mention, or why should she not talk about this part of her life? So the thing is, as you said, ki say, till maybe 10, 11, 12, they are together and I mean, they mingle very well. But once the puberty starts, once the girl starts menstruating, there is definitely a separation. So now here, it's a responsibility of a mother, I would say. If she has a son, it's her responsibility to tell the boy basics of menstruation, ki bhai, why it happens. It's the genesis of mankind. If periods are not going to be there, you wouldn't have been here, right? None, not even a single person in the entire universe, earth would have been possible agar periods nahi hote, right? तो ये एक माँ की जिम्मेदारी है अपने बेटे को शुरू से बताना बताना क्यों इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ अ Yeah. वुमन कैसे मेंटेन रखनी है, उसके वजह से उसको बताना है. तो होता क्या है, शायद आपने भी कभी सुना हो कि क्लासरूम है, अ गर्ल स्टेन्स हर ड्रेस, मे बी उसको पता नहीं चला, बाय द टाइम उसको पता चला तब तक मे बी किसी बच्चों ने देख लिया था या वो. एंड इफ इट्स अ बॉय, सो व्हाट हैपेंस, दीज बॉयज दे मेक फन ऑफ हर, they gang up, they laugh at her, and that moment, that day becomes a nightmare, and it scars the girl for the life. वो हमेशा उसको रहेगा अगर उसको क्लास में इस चीज के लिए मॉक किया गया या वो हुआ. तो ऐसी सिचुएशन मदर्स को बताना चाहिए अपने बच्चों को, लड़कों को, कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई क्लासमेट है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपने कहीं भी अपने फ्रेंड में ऐसी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन देखी, सो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू रिएक्ट, राइट? सो मैं छोटे एग्जाम्पल्स जैसे बच्चों को बताती हूँ, तो क्यों वो बोलेंगे ना हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करें उसके अंदर. तो आपको कुछ नहीं करना है. एक बात तो ये है कि आप सिंपली अपने वो लड़की की किसी फ्रेंड को बोल सकते हैं धीरे से कि भाई प्लीज गो एंड चेक इफ देयर इज एन इशू विद दिस पर्टिकुलर गर्ल, क्योंकि आप शायद जाके बोले तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा उसको भी. या अगर आपको ऐसा लग रहा है आप किसी तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप अपना जैकेट उसको दे सकते हैं, शी कैन टाई इट अराउंड हर वेस्ट,
वो ऑकवर्ड सिचुएशन को ये करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके सामने ऐसा कुछ हुआ भी है, प्लीज डू नॉट मेक फन ऑफ इट। उसको एम्बैरेस मत करिए, उसको ऑकवर्ड मत करिए, क्योंकि वरना वो जिंदगी भर किसी लड़के से इसके बारे में अपनी कोई इशू बता नहीं पाएगी। ट्राई टू हेल्प द गर्ल इन विच एवर वे यू कैन। सो ये तो माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को बताने के लिए, और यही समझाना है उस मदर को भी कि भाई तुम ये सोचो, तुम्हारी माँ को भी पीरियड्स होते हैं, तुम्हारी बहन को भी, तुम्हारी नानी दादी सबको होते हैं ना, तो तुम एक बाहर वाली लड़की का मजाक कैसे बना सकते हो? तो ये चीजें अगर घर से शुरू से समझाई जाएंगी लड़कों को, कैसे हेल्प करना है आगे बढ़ के, क्या कर सकते हो, so of course it will be very useful. Yes, and I think very wonderfully put in. I think इसके लिए बहुत information चाहिए, and I think there's a lot of work, and kudos to you for doing such an amazing job around that. My one question that we have is talking about the equality. We're talking about the men and women, and a lot of girls drop out from the हाँ. from the sport at certain level. So, how much role of in our education system, what is that is lacking in our education system that can actually make sure that there is a wholesome knowledge given to the girls or the kids, all the kids, that somebody like Hamjoli has to come and deliver externally, उससे अच्छा एजुकेशन सिस्टम में आ जाए तो उससे क्या फायदे होंगे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? राइट सिद्धार्थ, आपको तो पता ही होगा ये बात कि अगर आप किसी भी स्टेट, चाहे स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, किसी की भी बुक उठा के देख लें, तो आई थिंक 8th 9th और 10th में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेंस्ट्रुएशन के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ होता है। करेक्ट। ये तो हम बात कर रहे हैं जो हमारे बड़े शहरों के स्कूल्स हैं उनके बारे में, लेकिन हमने बहुत सारे रूरल स्कूल्स में जाके जब इसके बारे में बात करी कि आपको क्लास में बताया होगा, तो लड़कियों ने हमें ये बताया कि नहीं मैम, वो बोलती है मैम कि तुम लोग घर में पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे लड़के भी बैठे होते हैं ना, तो अजीब लगता है सुनने में, तो मैम बोलती है तुम घर पे पढ़ लेना। तो एजुकेशन सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं तो ऐसा भी हाल है। हाँ, ऑफ कोर्स हमारे जो कमर्शियल स्कूल्स हैं वहां पे पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने खुद वो पढ़ के देखा है कि किस लैंग्वेज में वो लिखा होता है। सो इतना मतलब स्टेराइल लैंग्वेज, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन अ वेरी हेवी कॉन्सेप्ट वो समझाया जाता है कि वो सिर्फ रटने से ज्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ लिया और तो जो क्रक्स है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो नहीं समझ पाते बच्चे। तो क्या होता है, तो जो आप कह रहे हो ना, एजुकेशन, यस एजुकेशन सिस्टम में है, लेकिन इस तरह के जो अवेयरनेस वाले जो अलग से सेशंस होते हैं, हम लोग भी जाके देते हैं जैसे, वो एक बहुत अलग तरह से डिजाइंड होते हैं। तो मुझे लगता है हर स्कूल को अलग से प्यूबर्टी एंड उसके लिए अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस बच्चों को लिए कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए। तो अब जो ये एथलीट लड़कियों के बारे में आप कह रहे हैं कि वो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो पहला तो सबसे पहले क्योंकि उनको अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, वहां पे उनको अगर शुरू से बेसिक फिजियोलॉजी, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज नॉट, क्या करना है, कितने देर में पैड बढ़ना है, क्या बीमारी हो सकती है, क्या हेल्थ रिस्क है अगर आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, ये सब कुछ अगर एक बार उनको बताया जाए तो उनको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी उसके बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट्स, जो हमने अभी पहले बात की, कि अगर उनको पहले से ही पता हो तो वो शायद मिस आउट नहीं करेंगे वो टूर्नामेंट एट द स्कूल लेवल इटसेल्फ, कि उनको पता है कि भाई अच्छा चलो अगर मेरे को ये है तो मैं ये कर सकती हूँ, या मैं डॉक्टर के पास जाके किसी तरह का कुछ ये कर सकती हूँ। सो ये सब अवेयरनेस कहाँ से आएगी जब आपको कोई बताएगा। सो एजुकेशन उस लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, वो सारा। तो वो अभी भी हमारे घरों में इतना नहीं, लड़का सब लोग खेलने जाते हैं, सब क्रिकेट खेलते हैं गली में जाके, लेकिन कितनी लड़कियों को आपने गली में क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा? क्यों हमारा सेटअप, हमारा इकोसिस्टम वैसा नहीं है कि हम लड़कियों को एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जाके गली में खेल रही हैं, या लड़कों के साथ, या इवन लड़कियों के साथ। तो वो एक सपोर्ट, अगर आप फैमिली को लगता है कि मेरी बेटी बैडमिंटन में अच्छी है, नीचे खेलती है तो अच्छा खेलती है, तो उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप कोई किसी तरह के एकेडमी में या कोई भी आसपास में इस तरह का वो, तो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। और अब जैसे आपने बताया कि ऑफ कोर्स आफ्टर द ओलंपिक्स 2020, सो फैमिलीज को डेफिनेटली सोचना चाहिए कि लड़कियां बहुत कुछ करने वाली हैं आगे जाके। Yeah, and I believe me, I think कोई ना नहीं बोलता कि I think लड़कियों ने सबसे ज्यादा मेडल्स लेके आई है इंडिया के लिए across all the tournaments whatever has happened, and they are setting the benchmark at different level. The way we had an opening with Mirabai Chanu for this year's Olympic, I think that itself set the tone. But we need a lot
I think the pyramid that we talk about, the economic and the socio-economic and the whole pyramid, the grassroots level, the lowest possible people in the chain, I think needs to get the awareness, and people like you are doing phenomenal job. So my last question to you, Dr. Is what is that you want to see the change through Hamjoli and your work in the coming future, and what's your ultimate goal? Right. मतलब इसके लिए तो कोई, अगर आप मुझसे ड्रीम पूछेंगे तो मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, या मैं इतनी ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ। तो अलग अलग ड्रीम्स बना रखे हैं अलग अलग सेक्टर के लिए। सो फर्स्ट ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो हम काम हमजोली के साथ करना चाहते हैं वो इंटीरियर्स में करना चाहते हैं, रूरल एरियाज में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को तो बहुत एक्सेस है, हर तरह की बुक अवेलेबल है, हर तरह का गैजेट पे उनको सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन वो लड़कियां जो पुणे से ही, मैं कहती हूँ 100 किलोमीटर दूर अंदर कोई गांव है, तो उसको कोई नहीं बताने वाला है, ना उसके पास कोई उसकी एक्सेस है। तो हम ज्यादातर जो ग्राउंड वर्क करना चाहते हैं, हमारा ये एम है कि हम वहां करें। हम हर सिटी में अपना एक एक हेड, एक ऑफिस टाइप का रखना चाहते हैं। अभी हमारी शुरुआत हुई है तो ऑफ कोर्स पुणे में तो हम हैं ही। दिल्ली एनसीआर में हमारा ऑफिस सेटअप है, वहां पे हमारी पूरी टीम है काम करने के लिए। लखनऊ में एक छोटा सेटअप है। तो आपके प्रोग्राम के जरिए भी मैं लोगों से ये अर्ज करना चाहूंगी, अगर किसी को भी इस तरह के काम में इंटरेस्ट है, हमारे साथ मदद करना चाहता है, तो वो हमें वॉलंटरीली जुड़ सकता है अलग अलग सिटीज से। दूसरी एक और चीज है कि हमने एक बुक पब्लिश करी है अभी। दैट बुक इज इन हिंदी। इंग्लिश में बहुत अच्छी अच्छी अमेजोन पे आपको प्यूबर्टी और पीरियड्स के बारे में बुक मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप हिंदी में देखेंगे तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं फॉर द गर्ल्स टू रीड दैट एंड गेट दैट इंफॉर्मेशन। सो हमने एक स्टोरी फॉर्मेट में बुक बनाई है। तो मेरा एक ड्रीम अगर आप बोलेंगे तो ये है कि मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर वो बुक होनी चाहिए, उसकी कुछ कॉपीज, सो दैट वो एक्सेस हो लड़कियों को, और स्पेशली जो जिला परिषद के स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनकी लाइब्रेरीज में, या उनको डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमें मौका मिले। सो दैट इज वन ऑफ माय ड्रीम। उसके अलावा एक और जो बहुत अलग सा ड्रीम है, आई डोंट नो कितनी फिजिबिलिटी है उसकी, कि मैं चाहती हूँ कि हम एक तरह के पीरियड स्टेशंस बनाएं सिटी के अंदर। नाउ दिस पीरियड स्टेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी सेफ स्पेस। एक कैफे जैसा हो सकता है कुछ, उसमें एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद मेंस्ट्रुएशन, ग्रोइंग अप, प्यूबर्टी, सब कुछ वहां पे होगा। इट्स गोइंग टू बी अ फन स्पेस। वहां पे सेफ चेंजिंग रूम होगा सबसे पहले तो, कि आप कहीं मार्केट में है, आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, पब्लिक टॉयलेट्स आपको पता है कैसे होते हैं, तो एक बहुत ही प्रॉपरली सेटअप चेंजिंग रूम होना चाहिए। काउंसलिंग रूम होना चाहिए, किसी को हमसे आके कुछ पूछना है, हमारे काउंसलर्स वहां बैठे होने चाहिए, वॉक इन करके आप आइए और आप पूछ सकते हैं। एक लाइब्रेरी होगी वहां पे, जिसमें इससे रिलेटेड हर तरह का मटेरियल, हर तरह की एजुकेटिव चीजें होंगी वहां पे। प्रोडक्ट डिस्प्ले, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह के कितने तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो आप वहां पे आ सकते हो, टच फील करके देख सकते हो उसके बारे में कि क्या है। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आर अनलिमिटेड टू बी to make that period station, but of course it looks like a far-fetched dream because मतलब उसमें बहुत चीजें required but that is a dream that I can say. No, but I think that dream about the way you started it, maybe being a doctor and where you started, I think that itself shows that you have taken the right step in towards the dream. Breaking the taboo, making the change in society, it's not an easy thing that you're doing, and and we know that I deal with so many athletes that we know these kind of questions are coming from a lot of athletes. So believe me, whatever the questions are put in today are, I have collected those from the athletes. It is not something I've tried to cook up those questions from my side. I went and asked those questions to my athlete. I spoke to my wife, my daughter, and some athletes around about asking this question, and that's why I said, let me get this thing out. And it's wonderful work that you are doing with Hamjoli, and happy to contribute at any level that we can do, and make sure that this is, as we say, this is a comma, not a period. It's not a full stop; it's just a comma, and it's an important thing. It's not a woman thing; it's a human thing. So thank you, Dr. Sania, for spending your time with us, and wonderful chatting with you, and hope to connect with you soon. Thank you, Siddharth. Thank you again. I would like to extend my gratitude for having me here.
And I want to sign off just by saying जो हमारी tagline है कि periods शर्म नहीं क्षमता है और हमें वही बना के आगे चलना है. Thank you. Thank you for that. Thank you. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you for liking and thank you for sharing. But please do subscribe to our channel Sports C Sage and help us spread the word about Sports C. We go with the same handle Sports C Sage across all the social media platforms and podcasts.